रिया हो गई। वेलकम टू दोस्त कास्ट। टिपिकली क्या होता कि मैं तेरे को स्टूडियो में बुलाता और हम ऐसे बैठ के बात करते which are the conversations that I like because I still like in real life podcasting. But अभी जैसे कोविड की वेव आ रही है, we're back to Zooms again. Are you feeling some of the Zoom fatigue? Have you been on a lot of Zoom calls yourself? Not really. I avoid Zoom calls. I hate face देखना किसी का भी. No, I mean not in. For sure. Thank you for making this exception. I'm truly honored. नहीं मतलब पॉडकास्ट में तो obviously you have to do that. I actually personally मैंने डैन क्रिश वाला पॉडकास्ट देखा था तुम्हारा and वही मैं सोचूं कि डैन क्रिश तो स्टूडियो में गया मेरे को Zoom कॉल करना पड़ रहा है. Sadly, यही दिक्कत बहुत सारे लोगों की, but for sure we'll do one live. Because I feel like, have you ever done a live podcast yourself? No. I'm scared that I'll say मतलब कुछ गड़बड़ कुछ गलत get cancelled after that. I don't think you can get cancelled in India. Yeah. I think so too. You Right? can't. I mean, I think maybe after 6 years वो wave आएगा cancel culture का. लेकिन आएगा. हाँ मतलब हमारे यहाँ पे लोग इतने स्मार्ट नहीं हुए हैं कि वो ऐसे कैंसिल कर पाए. At least younger YouTube creators. I don't know. Do you feel like when you make content you're towing the line कि इस बात से मैं cancel हो जाऊंगी शायद? Maybe in the future. देखो Jenna Marbles का scene, if you know. Who's Jenna Marbles? Jenna Marbles is one of the biggest YouTubers. So back when in 2005, 2007 वैसा थोड़ा offensive racist jokes मारती थी, and now her content is completely clean. लेकिन since cancel culture का wave अभी मतलब west में काफी है, तो उस वजह से she was getting cancelled for the stuff she used to say 2007-2005 में. So you have to keep that in mind कि मतलब once you put something out there, it's always going to be there. और अगर in India in future cancel culture आया, so you can get cancelled for the things you're saying right now. So, Right. I'm just reevaluating my entire life. Have you said a lot of things? Yeah, I've said a bunch of things which I think are, synchronous with अभी जो मैं इंसान हूँ. पर मेरे को लगता है जब मेरे बच्चे देखेंगे तो सोचेंगे हमारे पापा ने बहुत गलतियां करी हैं जिंदगी में. It's okay, मतलब growth दिखेगी ना उनको तब. I think it's going to be a tough story to sell as well. Like imagine you have kids and they end up watching like the worst video of you or like a compilation of you. Okay? And suddenly this image that you're trying to present is distorted. I always fear for my kids. Yeah, मैंने सोचा तो है ये. Even with someone maybe like dating scene में क्या होगा कि videos देख लिए मेरे कैसा feel करेंगे वो. But that is also one of the reasons why sometimes I think should I do YouTube. But then when you're newly starting off and you don't have that many numbers and you're doing this stupid shit, still तब भी लगता है कि मैं क्यों कर रही हूँ. मेरे दोस्त ही देख रहे हैं और कोई नहीं देख रहा है. But अभी थोड़े numbers आने के बाद I think you can get away with doing that stupid shit क्योंकि तब थोड़ा like लोग बोलते हैं अच्छा इसको लोग तो देखते हैं. She's earning from this. Right. So there is definitely social approval working in your name. Yeah. But फिर भी I'm inclined to ask ऐसा क्या है because अभी हम लोग बात कर रहे थे pre podcast कि I didn't watch a lot of YouTube growing up, but I'm considering कि जिस तरह से तूने Jenna Marbles का भी नाम लिया, it's an example that was on the tip of your tongue. You probably know more about YouTube than I do. Were there people you were watching as a kid that inspired you कि यार अब मैं भी YouTube कर सकती, or were you always sort of broadcasting yourself? No, I was never broadcasting myself as such because I feel like मेरे को center of attention बनना ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि already मिलता था मेरे को घर पे attention. I was the youngest kid, so मेरे को मिलता था तो मैं इतना crave नहीं करती थी. So I feel like a lot of people start YouTube for the attention factor. Attention, right? Yeah, which is not a bad thing. But why I started making YouTube is YouTubers को देख के of course हमेशा एक phase आता था कि एक YouTuber को देख लिया तो उसकी तरह videos बनाने का कोशिश किया. अभी भी उस phase में हूँ मैं. अभी मैं किसी YouTuber को देखती हूँ फिर उसकी तरह बनाने की कोशिश करती हूँ. So मतलब start किया I think beauty gurus करके एक term रहता था अभी भी है कि मतलब जो makeup वगैरह करती थी लड़कियाँ तो उनको देख के मैंने भी start किया था. फिर ब्लॉग्स में आई क्योंकि ब्लॉगर्स का एक बहुत वेव आया था. फिर अभी कमेंट्री भी मैंने जब कोडिको करके एक यूट्यूबर है उसको देखना स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब चैनल. और कमेंट्री माय गोल वाज नॉट टू गेन नंबर्स बट वो खुद मतलब ट्रैक्शन आना चालू हो गया वीडियोस में. So you've been riding the wave of trends for a while, but कल परसों you put up a tweet around this 37-minute video
of a bookstore or just generally talking about books. मैंने बीच में से देखा. It fascinated me because बड़ा कम I found, at least I will call YouTubers my colleagues. I found many of my colleagues are not avid readers. तो तेरा क्या scene है? Have you been a sort of person who finds solace in bookstores? You go to a lot of bookstores, that sort of thing? No, I don't read, to be very honest. I don't read. I need to start reading because it's apparently good for your mental health. Because For sure. you know when you what? For sure. Yeah, because I was listening to a podcast. वहाँ पे बोल रहे थे कि social media पे your मतलब brain बहुत ज़्यादा attack होता है. Like you're thinking about a million things at a time. मतलब million लोग अपने opinions दे रहे हैं और मतलब बार-बार 5 सेकंड में तुम्हारा ये जो read करे वो change हो रहा है, opinions change हो रहा है, especially on Twitter. So when you read a book, you kind of go into your own world. मतलब अपनी imagination strong होती है. I need to start reading books. मेरे भाई ने भी suggest करी है कुछ, but I will start reading, but I didn't like the video for the book factor. I liked the video for the editing, for the effort that he put in. Like वो अलग-अलग जगहों पे गया, वहाँ पे उसने record किया, अकेले बनाया उसने, like उस पूरे बंदे ने वो पूरा वीडियो अकेले बनाया. And that is what was fascinating to me कि अगर ये बना सकता है तो मैं भी अकेले बना सकती हूँ ऐसा एक वीडियो अगर मेरी skills थोड़े और brush up करूँ तो. So that's why I think that video inspired me a lot. And yeah, I would like to make something like this in the future. And I feel like ये content भले ही सबका cup of tea नहीं है. Still, like books, why reading books is important, why how you can speed read. ये बहुत ही थोड़े boring topics है for the general public. But correct. I make videos around that, I know. Yeah. So he somehow made that topic really interesting to watch. So that is something that I would like to do in the future. Not doing that right now, but definitely will do that. हाँ मैं तेरे को guilt shame थोड़ी कर रहा हूँ reading ना करने की. मैंने तेरा tweet देखा था इसलिए मैंने कहा पूछ लेता हूँ एक बार. As far as what you said about social media, I think it's accurate. When you with social media, it's like तुम एक बाजार के अंदर हो और सारे merchants बोल रहे हैं ये खरीद लो और तुम बोलते हो कि यार मैं क्या खरीदूं, you know, analysis paralysis. With the book, I think it's an open-ended conversation with a friend you trust, where you can even, you know, build your ideas, and it's long form. तुम एक ही चीज पढ़ रहे होते हो. So I've also found whenever I felt like, bro, this is getting too much. मतलब, you know, nowhere near the numbers that you have. But whenever I see a span of messages or too many comments, I'm like, do all of these need a response? What do I do? What part of my brain do I use to function? And then also do my other things. Because I don't know, how do you deal with feedback? Because itne unsure with you, like you have hundreds of DMs, all those messages, filter through all of them, read. What do? Do you have like hacks? Yeah, I used to, मतलब जब स्टार्टिंग में मेरे को रीडेबल कमेंट्स आते थे जो मतलब खत्म हो जाते थे 100-200. Readable comments? What do you mean by that? मतलब अभी तो 1000 से ज्यादा कमेंट्स आते हैं वीडियो के नीचे, तो वो नहीं सब लिखते ना. Right. तो हाँ, जब 200-100 कमेंट्स आते थे मैं बहुत दिल पे लेती थी. लाइक डीएम्स भी सारे अच्छे से पढ़ती थी, क्या बोल रहे हैं, क्या फीडबैक है, हर वीडियो के बाद फीडबैक कि ओके ये गलत था, ठीक है. देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि आई कांट प्लीज एवरीवन, सो आई स्टॉप रीडिंग दैट. नाउ व्हाट आई डू इज आई रीड द फर्स्ट टॉप 10 कमेंट्स बिकॉज यूजुअली वो अच्छे होते हैं. एंड अगर उन टॉप 10 कमेंट्स में से भी एक कमेंट खराब है तो मतलब वीडियो सच में खराब था, क्योंकि यूजुअली लोग बहुत लाइक करते हैं एंड you know that's how the top comment becomes the top comment. So पता चलता है कि ओके एक गंदा कमेंट है, उस पे बहुत लोगों ने लाइक किया है, तो मे बी वीडियो अच्छा नहीं था इतना. अगर वो टॉप 10 कमेंट्स अच्छे ही हैं तो आई थिंक ओके, आई अज्यूम कि हाँ वीडियो अच्छा था, ठीक है, नो प्रॉब्लम. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लोग जो भी बोले आई फोकस मोर ऑन व्हाट आई वांट टू मेक. आई डोंट थिंक मच अबाउट लोग क्या बोले, मतलब लोगों को क्या पसंद आएगा क्या पसंद नहीं आएगा, क्योंकि then I stop enjoying the process. It's not the same process for everyone else. मतलब कुछ लोग सुनते हैं ताकि क्योंकि उनको नंबर्स चाहिए रहते हैं. मैं थोड़ा अप्रोच अपना अलग रख रही हूँ कि मतलब नंबर्स के बारे में सोचना ही नहीं है, just make what you enjoy. क्योंकि अगर मैं enjoy नहीं करूँगी तो मतलब अभी ऐसा कुछ है नहीं कि YouTube नहीं चल रहा तो घर बार नहीं, मतलब I can move on. I'm very young now, so I can move on and do other things. How old are you? I'm 22. I'll turn 22 this year. Okay. So abhi I'm just enjoying.
एंड मतलब मेरा 15 मिनट्स ऑफ फेम एंजॉय कर रही हूँ मैं और कुछ नहीं. या इट्स लाइक जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहली बार फेम मिला था गैंग से वासेपुर के बाद, तो उससे इंटरव्यू लेते हैं, बोलते देखो अभी तो तरक्की आई है, वेट कर रहे हैं कब तक रहेगी, पता नहीं आगे है या नहीं है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. आई फील लाइक योर रिस्पॉन्सेज आर वेरी सिमिलर टू दैट. बट इट्स प्रॉब्ली बिकॉज like it's very strange, no? One day you're not doing anything, suddenly you're on YouTube, and then your life revolves around that. It changes completely. And now you're broadcasting your ideas to the world. And I'm just wondering, ki, how has that changed the way your relationships run in your life, or has your private life remained the same? For the most part, it has remained the same. A little bit of relationships in the sense when I went back to Assam, I met my school friends, and a little bit of their behavior thoda notice kiya tha maine change. Like okay, they treated me normally, but वो फोन लगाते थे 10 लोगों को कि अच्छा इससे बात करना इससे बात करना, they watch your video. Like तो हाँ वो that was something new. Like people call me more often than usual now than they used to. Behavior same है, but वही है कि अगर अपने दोस्तों के साथ रहता है तो फोन लगा देता है बस कि हाँ मतलब हाय रिया मेरा दोस्त है उससे बात करना. Apart from that, yeah, nothing much has changed. Like people's behavior towards me has not changed. So that means you have good friends. Yeah. Yeah, I don't know why I find that very strange on YouTube, and I'll say this, that a lot of people come to YouTube because they have no friends, and there's nothing wrong with that. But I'm beginning to believe ki something about having a healthy social life pre-existing to YouTube somehow allows you to cushion maybe the bad effects of, you know, your videos not doing well and all of that. Like you're not only dependent on your internet community for जो एक sense of well-being मिलती है ना तुम्हारे fulfilling relationship से. Yeah, I mean, I think when I was in Mumbai, in Bombay I have friends, but we don't hang out itna. ठीक है, घर पे ज़्यादा रहता है, prefer करता है. So I feel like I was making better content when I was not hanging out with too many people. जब मैं असम आई, I started hanging out every evening, every weekend. तो ऐसे hang out करते करते मेरा like I was enjoying more in my real life. तो मेरा YouTube पे कंटेंट थोड़ा स्लिप हो रहा था. अभी 3 महीने से I feel like Interesting. So you feel like कि some degree of solitude is necessary अपना YouTube content निकालने के लिए. Yeah. If you want to be a YouTuber, I feel like it's necessary to, well, we need to learn how to be alone. Because editing hours and then filming वो सब के लिए बहुत time consuming वो सब. So you need to learn how to be alone by yourself for hours on end is what I think. Yeah, it's been a while since I've done that. I have a very very busy schedule, and मेरे को लगता है कि whenever I do that, it's like समय का पहिया 2 मिनट और काम हो जाता है और ऐसा लगता है. With your hanging out with your friends is what you mean? No, with the friends it's like joke. Oh my god, मैं मरने वाला हूँ हंस के, right? But no, when I'm alone, when I don't have कि आज क्या वीडियो बनानी है या who to talk to, all of those things, there's that sense of so I can enjoy this little part of me, this rather huge private part of me that is devoid of the reputation I have on YouTube. You know what I mean? Like it's a way to separate who you are from YouTube, separate who you are on YouTube from who you are as a person who does not broadcast, who just lives. Yeah. ज़्यादा भारी हो गया. I enjoy these type of conversations. हाँ, अच्छा तेरा podcast भी है ना वैसे? You started one podcast episode. I was listening to it. I enjoyed the free flowing unconscious rant about different things. मैंने ये करा. It's a very flavorful podcast. Oh, thank you. I thought लोगों को boring लगेगा, but as I said, I don't care लोगों को क्या लगता है, मैं डाल देती हूँ. तो हाँ मैंने डाला. अभी तक एक ही एपिसोड किया था, उसके बाद मेरे को वीडियो पॉडकास्ट करना था, लेकिन इंटरनेट इश्यूज थे थोड़े जहाँ पे मैं थी. अभी I'll continue again. अभी तक एक ही एपिसोड निकाला है. So yeah. Right. So you listen to the whole thing? No, I listen to parts of it, of course, because it's on YouTube, ठीक है, and I also have a bad attention span. That's why I record podcasts instead of listening to them. मेरे को लगता है कि जो चीज़ मैं कर रहा था वो मैं अगर जो मैं सुन रहा था मैं वो क्रिएट कर दूंगा तो मुझे नहीं सुनना पड़ेगा. I don't know, it's weird. But
are there other podcasts that you listen to? क्योंकि तूने इससे पहले mention करा कि you heard that reading a book is better for your mental health than consuming social media. So I listen to Frenemies करके एक podcast है, but it's very but it's not intellectual. It's very food वाला podcast. Just two people being stupid and having fun. So yeah, I listen to that podcast. Podcasts sell for a lot of money, right? What do you mean by that? मतलब podcast बना के भी तुम बहुत कमा सकते हो पैसे. यार तो इंडिया के अंदर सीन ऐसा है कि you can do host ad reads. ठीक है कि तुम बैठ के. Personally मैंने नहीं देखा है इंडियन पॉडकास्ट में. स्पॉन्सर्स नहीं मिलते इंडियन पॉडकास्ट को. तो यही सीन है. So I worked at this company in Mumbai, Khar West में, IVM Podcasts for around a month, and I was handling their business development for that month. मुझे याद है कि a lot of my job would be to go and get companies to come and buy a podcast ads. ठीक है. तो जितनी भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं जैसे इंटेल या फिर फाइनेंस इक्विटी कंपनीज मोतीलाल ओसवाल वगैरह, they could afford to run experiments like हमारे एक 4 पॉडकास्ट एपिसोड की सीरीज जहाँ पे हम पर्सनल फाइनेंस एक्सप्लेन करते हैं सिर्फ ऑडियो. यू सी हाउ niche that gets. तो it doesn't work. I know 1 or 2 podcasts only जिनके ऊपर एड चलते हैं कुछ भी, because ये मार्केट बड़ी अजीब सी है. I still find that most Indians consume podcasts on video. At least सब लोग पॉडकास्ट पूरा देख लेंगे, but very few people listen to it, which is why it's going to take a while for this to monetize. Like maybe like one avenue is to have a Patreon or Tag Mango, in front of a podcast. But the day लोग ऐसा करना शुरू करते हैं ना कि ये वाली कॉफी एडवर्टाइज करो अपने पॉडकास्ट के ऊपर, ठीक है, and then you earn some of the sales, I think that's when this market will really kick off. अभी तो शुरू ही हो रही है बस. अच्छा ये सीन है. तो फिर how old are you by the way? I'm 24. हाँ वही जॉब बोला मुंबई. Okay, 24 makes sense. हाँ, why is that? Me asking you. हाँ नहीं, जॉब बोला 24 इसलिए I couldn't understand that. नहीं, because वही I wanted to know कि मतलब how old are you क्योंकि जॉब कर रहे हैं. Just a roundabout way of asking. अच्छा tell me, जैसे YouTube पे एक चीज हो गई यार, मैं I often think about कि, और ये थोड़ा मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन है कि I often think about people's childhoods, their hopes, their dreams, ठीक है, जो उनको इस तरह का इंसान बनाते हैं जैसे वो अब हैं. And because YouTubers, my colleagues, I end up either talking to my friends on those casts or YouTubers on those casts generally. ठीक है, it's going to sound really cheesy and stupid, I'm going to say it. What did you want to be as a kid? जो मुझे बनना था, I feel like I am going towards that direction. हाँ. But I don't know if that is the norm anymore. क्या बनना था? वो डिस्कवरी चैनल में होता है ना जो ट्रैवलर्स TLC में जो ट्रैवल करते हैं, होस्ट करते हैं, एंकर करते हैं. हाँ, I wanted to do that. वो ये जवानी. So but I always thought okay that was the unachievable goal. ठीक है. But in reality I was like okay अगर वो नहीं हुआ, जो नहीं होने वाला है, मेरे दिमाग में तो ये था कि ये नहीं होने वाला है. हाँ. तो मैं एक नॉर्मल जॉब करूंगी 9 to 5 because I don't mind that. मेरे को I don't mind doing a repetitive job, ठीक है, जिसमें ज्यादा प्रेशर नहीं है. Like I just like to live my life peacefully. So इसलिए कभी-कभी YouTube पे भी you have to take responsibility. You kind of, if this thing grows, I'll have to be a leader. I'll have like people who look at me. I don't want that. यार मैं लीडर नहीं बनना, मेरे को बेड पे उल्टा होके सोना है, कराटे मार feel that. हाँ, but then अभी ये रेवलेशन हुआ है मेरे दिमाग में कि शिट, मेरे को बचपन में जो बनना था उसी तरफ मैं जा रही हूँ. लाइक उल्टा हो रहा है. लाइक लोगों को ये चाहिए रहता है, मेरे को ऐसे हाथ में दे दिया, ऐसा लगता है. हाँ. भगवान ने हाथ में दे दिया कि ले. तो तू नेचर डॉक्यूमेंट्रीज को डब करना शुरू करना. अब नर्मदा की तरफ जा रहा है लेकिन बचड़ा इधर है, जैसे वो बात करते थे ना. बिकॉज आई यूज्ड टू वॉच ऑल ऑफ दोस डब्ड इन हिंदी, सो इट वाज इवन मोर फनी कि एक थिक सी आवाज आदमी की, अगर वीडियो वाला होस्ट नहीं है और वो नरेट कर रहा होता है, ये हाथी इस टाइम पे बहुत खुश है, गर्मियों के समय के अंदर हाथी अक्सर पानी की तरफ जाते हैं कि हाथी की याददाश्त अच्छी होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इट वाज हिलेरियस. यू शुड बी अ वॉइस एक्टर फॉर दोस चैनल्स. यार आई विश. सो उनके लिए ना ऐसा एक सीरियस 37 साल का आदमी चाहिए होता है जिसकी बहुत भारी आवाज होती है, जो सीरियसली बता पाता है नर और मादा बिना हंसे. जैसे मैं तो बोलूंगा नर मादा, मुझे हंसी आ जाएगी. हाँ, तो दैट्स व्हाई द बुक वाला वीडियो ना, दैट आल्सो हैज
वो डिस्कवरी वाला फीलिंग, but it's हाँ. made by one person. So that's why I like that video so much. Yeah, have you watched Bear Grylls? Bear Grylls, हाँ, of course, Man vs. Man vs. Wild. Wild वाला, right? तूने कभी उसकी वो देखी हिंदी वाली डबिंग? वो नहीं. अफलातून साउंड करता है, और अब मैं जा रहा हूँ ये पागल चीज करने के लिए. मतलब he sounds crazier than he is. He sounds like Jim Carrey if he was in Hindi. मुझे देखना है वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बंदा कैसे बोल रहा है, मतलब रिकॉर्ड कैसे कर रहा है. बहुत फनी लगता है. I find that अगर did you ever use I mean I'm sure you did. Did you ever use क्या होता है सैटेलाइट टेलीविजन जो DTH आता है, टाटा स्काई टाइप की चीज? Maybe, I don't know. अरे उसके अंदर एक ऑप्शन होता है हर कार्टून के लिए. अगर तुम हंगामा टीवी पे जाओ, कार्टून नेटवर्क पे जाओ, हाँ. उसमें ऑप्शन होता है डबिंग चेंज करने का. तुम इंग्लिश, तमिल, पंजाबी किसी में भी सुन सकते हो. तो आई हैव हर्ड सम कार्टून्स एंड आई मेरे को बहुत हंसी आती थी कि किस तरह के ऐसे मुंबई के कहीं ऐसे लोखंडवाला में या फिर कहीं फिल्म सिटी के अंदर गोरेगांव में बैठ के ऐसे लोग अपने पसीने वसीने में आते होंगे और नोबिता की एक्टिंग करते होंगे. मतलब द होल आइडिया ऑफ लाइक हाउ वी नो डोरेमोन एंड ऑल दीज कार्टून्स इज बिकॉज ऑफ सम रैंडम वॉइस एक्टर्स इन मुंबई एंड वी डोंट इवन नो हु दे आर. Yeah, true. Even Disney Channel cartoons, वो जो अमेरिकन कार्टून मतलब शोज, अमेरिकन शोज वो भी हिंदी में डब आते थे ना. जैसे मिकी माउस क्लब हाउस, स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी. या स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी, हैना मोंटाना, वो सब भी हिंदी में डब होता था. सो आई रिमेम्बर एक बार गलती से लैंग्वेज चेंज करके मैंने इंग्लिश कर दिया. और फिर आई थिंक आई वाज इन 5th ग्रेड, तो आई वाज नॉट इक्विप्ड टू लिसनिंग टू अमेरिकन इंग्लिश, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था. तो हाँ, आई कुडंट चेंज इट फॉर डेज, और फिर ऐसे ही देखना पड़ता था. ऐसे लगता था यार कि मेरी वाली वाइब नहीं आ रही अब. हाँ भाई, एग्जैक्टली मेरी वाली वाइब नहीं आ रही. आई नो तुम दोस्तों से घर स्कूल जाके अभी आई कांट इमेजिन वाचिंग हैना मोंटाना इन हिंदी, यू नो. यार आई थिंक इट विल बी हिलेरियस, क्योंकि कुछ समय बाद तुम जैसे तेरे को पता है एवेंजर्स के अंदर जो सारे हीरोज है ना, उनका सबका हिंदी का नाम कुछ कुछ है ना. जैसे आयरन मैन है फौलादी आदमी, राइट? पर हाँ, तो इसकी एवेंजर्स की जितनी भी पिक्चरें उन सबकी हिंदी डब आती है जो रिलीज होती है, तो तुम देख सकते हो. तो निक फ्यूरी मालूम है कौन है? हाँ. निक फ्यूरी, जो जिसकी एक आई पैच होता है. हाँ. मतलब ये लोग इतने इनसेंसिटिव हैं, उसका नाम रखा हुआ है कानिया चाचा. तो सोच, वो सिर्फ रेफर करते हैं. ये ट्रांसलेट कौन करता है भाई? कानिया चाचा. मतलब कोई शर्म नहीं है कि आदमी की एक आंख फूटी हुई है, सीधा तू काणी है और तू बुड्ढा है इसलिए तू चाचा है, कानिया चाचा. स्पाइडरमैन का नाम क्या है? लेट मी गेस. स्पाइडरमैन क्या चीज? स्पाइडरमैन का नाम क्या है हिंदी में? पीटर. बट वो पीटर की वजह पीटर बोलते हैं. अर्पित है ना, अर्पित बाला, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है. पार कर, मेरे को ये फोटोज आज चाहिए हैं. जो उसका बॉस होता है ना, जे जोना जेमसन. नहीं, मैं नहीं देखती हिंदी में, तो मेरे को पता भी नहीं, आइडिया भी नहीं कि किसका नाम क्या है. सही. इवन जुरासिक पार्क भी. जुरासिक पार्क, हाँ, जुरासिक पार्क भी हिंदी में देखिए. हाँ, ये विशाल प्राणी. ये प्राणी कितना विशाल है. एक कुछ ऐसी some degree of alienation from like natural Hindi for all of us, because हम English भी consume करते हैं, English चीजें भी बनाते हैं, right? Our whole world is a little bit of mix of the both. तो जब ज्यादा pure हिंदी होती है, सब कहते हैं यार ज्यादा हो गया है, तो but it's actually totally normal, right? Like अगर मैं एक बड़े से ऐसे सांड को देखूंगा, मैं बोलूंगा वाह क्या विशाल सांड है. लेकिन वो फिर एक ऐसा मोमेंट बन जाता है कि आओ मेरे साथ एक्सप्लोरर्स, हम इस जंगल में, देख रहे हो ये सांड कितना विशाल है. एक्सप्लोरर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? खोजबीन करने वाले इज इन्वेस्टिगेटर्स. एक्सप्लोरर्स इज प्रॉब्ली जैसे ये मम्मी वगैरह वाली मूवीज में होता था, आइए रहस्यमय तहखाने में चलते हैं. हैरी पॉटर में बोलते थे रहस्यमय तहखाना, चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, रहस्यमय तहखाना. रहस्यमय, दिस इज बेटर देन क्या था, कान्हा चाचा. कानिया चाचा. श्योर, बेटर देन दैट. अच्छा, एक बात, you made a recent video, someone sent it to me, they were like कि ये वाला पार्ट देखना. You talked about being famous, कि क्लाउड पार्ट मिल जाएगा फिर कैसा होगा, और then you इस conversation में तूने बता दिया कि मैं ऐसे videos बनाऊंगी जिसको like the ones that I like personally. Yeah. What would be those videos? What do you want to talk about? So right now, okay, when I started YouTube, I did not have an end goal. Like ऐसा था कि मतलब ऐसे अंधेरे में चल रही हूँ, ऐसा कुछ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नहीं है. Right. और यूजुअली
एक ऐसा saturation point आ गया था where I was demotivated कि why am I doing this? I don't care about getting 1 million subscribers. तो मैं क्यों करूँ ये? मतलब हाँ, I enjoy this, but it's getting repetitive, and I need something to keep myself motivated. So now this is how I think about it. कि okay, my channel is my show. So usually, now I'm thinking of making videos that I think like TV पे भी वो दिख सके लोग, you know, like a proper show where I'm the anchor. So that is what I'm thinking in my head right now. Don't know whether it'll work or not, but I'm really excited about it. So हाँ, अभी वीडियो पे काम चल रहा है. Hopefully it'll get out by next month. I mean next week, sorry. And we'll see how the response is. Are you a typical सूट पहनने जो होता है बिजनेस सूट पहनने वाला एंकर, या एक तो होता है सर्कस की बॉलर हैट वाला, ये फिर स्टैंडर्ड कपड़ों में एंकर? नहीं एंकर नहीं, not that type of anchor, in the sense कि okay, अगर like कौन सा बेस्ट सिटी में, पूरे मुंबई सिटी में बेस्ट पिज्जा कहाँ पे बिकता है, चलो वहां जाते हैं, ट्राई करते हैं कैसा लगता है वो पिज्जा खाने, एंड लेट्स रैंक इट, यू नो, या फिर शेफ से बात वैसे टाइप. इंटरेस्टिंग. तो ये जो तूने बात बोली थी कि आई एम हेडिंग टुवर्ड माय ड्रीम ऑफ एंकरिंग लाइक अ नेट जियो टीवी शो, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्टेप इन द आरए फॉरेस्ट एंड देयर यू आर. इतना भी डिस्कवरी नहीं जाना है. मोर देन नेचर आई लाइक फूड रिलेटेड शोज, यू नो, अब फूड ट्राई करते हैं डिफरेंट टाइप्स के. डिड यू वॉच एंथनी बोर्डेन एवर? एंथनी बोर्डेन देखा था कभी? नहीं देखा. एंथनी बोर्डेन पर पता है ना कौन है? नहीं यार रिया तेरे को तो मजे आ जाएंगे. एंथनी बोर्डेन एक ऐसा कुक था जिसको 80s and 90s में हेरोइन एडिक्शन थी बहुत ज्यादा, and he was suffering and he was miserable. He was a cook in New York, fantastic cook. He decided to turn his life around. अगले 10-11 साल के लिए सीरिया, लेबनान, माडागास्कर, तू जहां बोल सकती है ना उसने वहां जाके खाना खाया है. और मतलब वो सीरिया में ऐसे बैठा हुआ है, टेररिस्ट आ रहे हैं कुछ करके, मतलब गन वन लेके, और KFC के जैसे हमारे यहाँ पे KFC का नकली जॉइंट होता है ना, किशोर फ्राइड चिकन ऐसे होता है ना, तो उसके यहाँ पे भी ऐसे कोई नकली है उनका, वहां बैठ के खा रहा है. ही इज टॉकिंग टू द लोकल्स एंड स्टफ. इमेजिन रॉकी एंड मयूर हाईवे ऑन माय प्लेट वाले, अगर तेरे को मालूम है NDTV को टाइम्स पे जाते थे, है ना, उसका बहुत अच्छा नॉन PC नेटफ्लिक्स शो वर्जन जो नेटफ्लिक्स पे है. इट इज फकिंग अमेजिंग. आई हैव नो आइडिया. हाँ, he said something like कि मैं अपने बिलीव्स और अपने ट्रेडिशंस को जी में भर के आऊंगा. क्योंकि अगर कोई बंदा मच्छी खाता है और मैं उसके देश में मच्छी क्यों नहीं खाऊंगा? This is how I learned about the culture, you know. So I definitely want to do that as well, कि मैं रैंडम एक जगह पे जाऊं और मैं बिल्कुल वो चीज खाऊं जो लोकल्स खाते हैं, ताकि लगता है ओ भाई ज्यादा ही कल्चर हो गया उस टाइप से. So are there like shows, is that something like you have in mind, या फिर ये स्टैंडर्ड like जाके रेट करना? वो तो टाइम के साथ पता चलेगा. विल कीप इवॉल्विंग विद टाइम. मतलब स्टार्टिंग में तो वही बेसिक आइडिया है फिलहाल. That's just a small example that I gave. We'll see how that goes. Yeah. Are there other creative inspirations that are outside of YouTube that you follow? Yeah. I mean, it's mostly actors and a few CEOs. So CEO में तो Indra Nooyi, I really admire that lady. We share the same birthday. It's mostly people के साथ. हाँ? When's your birthday? It's 20th October. ठीक है, रिया को कोई बर्थडे रिवील? हाँ, वो मैं सबको बोलती रहती हूँ, तो not a surprise. Even Bill Gates and I share the same birthday. ठीक है, मेरे पास एक गन नहीं और बस 2 गन है. नहीं, और एक है. बता यार, बता दे. तूने पक्का अपने बर्थ रेट पे लिखा होगा फेमस पर्सनालिटीज हु शेयर माय बर्थ रेट, तूने पक्का करा होगा गूगल पे. So yeah, one is Indra Nooyi, because वही lady है, she handles her family and also her, मतलब how did she manage to become a CEO whilst having a family? मतलब it's commendable. And apart from that, I really like Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, interesting. Yeah. Why Joaquin Phoenix? So I didn't know about his existence before Joker. After we also share the same birthday. हाँ, मेरे को पता था यार. तो but yeah, मैंने उसकी एक्टिंग देखी, and 2 बार जोकर देखी मैंने हॉल में जाके. मेरे को बहुत अच्छी लगी जोकर. And you know, he's
उसको कितना समझ नहीं पाते थे लोग, and his act, मतलब the laugh that he did, I didn't know that was a real issue. Like, I saw a video on YouTube. It's a real thing. It's a real problem. Tourette's. People can't stop laughing. Tourette's. Yeah. So, like the way he captured it, and then I watched a few of his interviews, and I was fascinated by the way he thinks, he talks. मतलब अच्छा लगा मेरे को, मतलब उसकी vibe अच्छी लगी. जो हीथ लेजर का जोकर था डार्क नाइट वाला, for me that got completely overshadowed by this new complex Joker. Because वो जोकर ऐसा था कि जो ऑलरेडी बन चुका था कि मैं तो हुई हरामी, evil हूँ. It was like this guy was down and out on his luck, एकदम बर्बाद, and then he becomes the Joker. Yeah. I mean, हीथ लेजर के अलावा और कौन था वो बंदा जिसने हक दिया था? जिसने हक दिया यार, वो सुसाइड स्क्वाड में जैरेड लेटो. वो तो मजाक के लिए आया था यार. वो तो एक ऐसी थी कि मतलब बना दी जैसे बारबी यूनिवर्स बना देते हैं ना, या फिर ऐसे ही वैन यूनिवर्स, ऐसे उसको बना दिया कि तू भी है इसके अंदर, निभा ले जैसे निभाएगा. हाँ, बट आई फील लाइक बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिस कर दी उसने. फॉर श्योर. रही बात वाकीन फीनिक्स की, मेरे को जब मैंने ये पिक्चर देखी ना, आई वाज इन मुंबई एंड आई वाज लाइक गोइंग थ्रू अ डार्क फेज माय सेल्फ. इन दोस डेज आई वाज स्टेइंग अलोन अ लॉट फॉर डेज एंड मैंने मुंबई में जस्ट मूव करा था, ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट द सिटी इज अबाउट. सो जोकर लगी, दिस इज जस्ट प्री कोरोना टाइम्स, मे बी लाइक फरवरी और लाइक जब भी जनवरी में आई लास्ट ईयर, एंड आई वेंट टू वॉच इट. अक्टूबर में आई हुई. मैं देखने गया, अकेले देखने गया, बहुत साल के बाद पिक्चर ऐसे. तो ओ फन फैक्ट, मैंने भी अकेले देखी थी. मजे आते हैं ना वैसे, बिकॉज़ यू ब्रिंग ऑल दोस एक्सपीरियंसेस इनसाइड यू. तुम्हें पता है कि क्या चला है, तुम ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि मूवी के बाद मैं मन में फील कर रहा था, हाँ ये बुराइयां मेरे अंदर भी हैं, ऐसा ही पागल बनना पड़ेगा. मेरे मन में पिक्चर चलती रहती है, हाँ मैं भी इसी की तरह ऐसे करूंगा और राज करूंगा, जो भी कुछ है चल रही है. बाथरूम में जाता हूँ मैं, यूरिनल के अंदर 2 लड़के कहते हैं कैसी लगी यार, बड़ी डार्क थी. तो गुस्सा आया, मन कर मैं खून कर दूंगा उसका यार. कि मैं एक मोमेंट, आई एम फीलिंग अ मोमेंट, तूने अपनी एवरेज घटिया 2 रुपए का स्टार रिव्यू देके ऐसे बदनाम कर दिया, पूरी वाइब खराब कर दी है. मैंने बहुत देर तक उसे ऐसे डेथ स्टेयर दिया, फिर कोई फायदा नहीं, वो हाथ धो के चला गया, तो फिर बीटी हो गई. बट लाइक दैट्स माय जोकर स्टोरी. अच्छा. I hate it when people ruin movies for you by saying कि इसका ये फ्लेवर था, ये इस तरह की. How do you know? You know, how do you know? What is your taste? मुझे क्या पता. तो दिन में 10 बकवास चीजें देखता है, मेरे को खुद देखनी है. हाँ, तो वो नहीं हुआ ना, वो जोकर का क्या बोलता है, एक सीन होता है ना बाथरूम में, he punches, ब्रूस वेन के पापा पंच करता है जोकर को. हाँ, he does that, right? भी पंच कर देना चाहिए था उसको, बंदे को. I wish. मेरे को तो ऐसा लगता था कि यार कि ये मुंबई है, यहाँ पे मेरे को नहीं पता कि कौन कनेक्टेड होगा, कैसे, मैं जानता ही नहीं था उस टाइम पे कि ऐसा हो सकता है. Also, it's like you've lived in new cities, right? This sense of home. If I'll tell you briefly about myself, I lived in Faridabad all my life, traveled abroad a bunch of times with my family, short. But I went to college in Boston for 4 years. Then I came back, then I lived in Mumbai. So my sense of home has been displaced ever since I first left it. And it's never been the same. I am at home right now because of COVID. But you and I both know that there's just something about living at home that, especially when you've called other places home, और तुमने feel करा कि हाँ यार ये घर जैसा है, ये घर है. It's very hard to go back. है ना? Yeah, I understand. I mean, I didn't leave for college. मतलब didn't leave my house for college. मैंने मुंबई से ही करा था, मुंबई यूनिवर्सिटी से bachelor's अपना. But I am desperate to leave right now, and the situation is not allowing me. So yeah, I am planning on leaving जब खत्म हो जाएगा कोविड का पूरा scene. Where are you gonna live? Where are you gonna live? That we'll have to see. वो सोचा नहीं, I've not thought this through. But I did go out on vacation for 10 days because नया पैसा आया था हाथ में, तो तो पेरेंट्स मना नहीं कर सकते अभी. परमिशन लो या ना लो, मैं बस बताऊंगी, इन्फॉर्म कर रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ. Money, yeah. It changes people. So I went out for 10 days and I lived in Bangalore with my friends who live alone. So that was the first time जब मेरे को टेस्ट मिला अकेले रहने का, where your parents are not there to tell you कि जल्दी आ घर, you know. So I was like, damn, I want to live like this forever. फिर घर आई वापस तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था. So I got it. पाबंदियां. एक तरीके से तुम लिमिट
आ जाती है एक। Right, right. हाँ मतलब and you learn a lot when you live alone, live without your parents, because एक shelter रहता है when you live with your parents, and I do wanna go out and experience backstabbing and all of that, क्योंकि अभी फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा protected हूँ, scam होना है मुझे लोगों तू से। चाहती है कि तू इतने साल ठोकरें खाए, फिर जब तेरे बच्चे हो तो बोले दुनिया बड़ी हरामी है, घर पे ही रहना। That's hilarious. But you want the whole adult experience, right? Like जो पूरा whatever it is, like being a person alone by themselves, doing well for themselves. You know, अभी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मेरे को करने से मतलब अकेले करने में डर लगता है, you know, like I don't have the confidence to go to a different city and look at houses there कि मैं कहाँ पे रहना चाहती हूँ, ये सब करने में मेरे को ऐसा लगता है कि I'm still a kid. So अगर unless मैं मतलब खुद बाहर नहीं जाऊँ and करूँ, तब तक मतलब I keep feeling like okay, I have to rely on my parents for these things. Right. So yeah. Yeah, I found that because my situation has been similar in the sense कि I have often had to come back home due to various circumstances. फिर ऐसी there is this sense of no matter how much I try, थोड़ी सी resentment मिल जाती है कि here we go again types of thing, right? Yeah. And that complicates your relationship with your parents where it should be very simple, ठीक है? But it's usually like it's not like they have to figure out anything. It's like you have to figure out your own shit so that relationship becomes simple. Because whenever you go back home, you're reminded कि अभी I haven't achieved what I want to achieve, right? And sometimes you do it because out of necessity कि COVID हो गया जो भी कुछ है. But gosh, I also feel horribly for the guys who are like alone. कि I'm a 30-year-old creative in Mumbai working at an ad agency. Yes, I'm independent, living with my 2 cats, but I'm alone. You know, there's also that. Okay. Then I think when you're 30, you should have, if you're happy, great. Right. But it's better to have a friend that you live with, or you know. हाँ, कुत्ते बिल्ली are not good conversational partners. मैंने generally ये देखा है. बहुत प्यारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. पर Okay. I think this is a modern disorder. कि पता नहीं, there is the new Indian somehow feels कि I'm independent, I have a creative job, all of that, and then I have to live alone, and living alone is horrible, and not everyone is equipped for it. So let me get a dog that I can pet. तू ही मेरी बात समझता है. You know, I will not like humans, but dogs are great. No, that is stupid, I think. You know, calling humans like dogs are better than humans. Dogs are like conditioned to like you. Exactly. You have to like try. हाँ, ये बात समझते नहीं है कि bro, I have no social skills, but this dog loves me. Great. No. Yeah, do you think? Do you follow Jordan Peterson? I do. So I think he says this a lot. Ki people say in modern times ki you can get away with not getting married or being single for the rest of your life, but it's not true. Like humans are not designed for it. But what are your thoughts on that? Very interesting that you bring that up, because so there's also this other guy. His name is slipping off the top of my head. He's an evolutionary psychologist. Mm-hmm. He has this book called Sex at Dawn, ठीक है, which basically retraces our history as कि जब हमारी जिंदगी में agriculture आया, we decided to divide everything, including land, time, our relations. उससे पहले we all used to live in tribal societies where polygamy was the norm instead of monogamy, ठीक है? Okay. But that worked because we all lived in the tribe. So you were raised by many different men and women कि तुम एक tribe के बच्चे हो तो कई सारे लोग तुम्हें वो कर रहे हैं. Okay. अब in modern times with industrialization, each man for himself, each woman for himself, ये marriage का concept आया. I agree. I think marriage is the answer, and the reason for that is because any sort of newly created concept जो 10 साल पहले उगाया था कि I'm a single plant mom. You know what I mean? Like that. So that is a good experiment in social science, but it's not a strong enough institution to sustain you throughout life. क्योंकि तुम्हें एक meaning चाहिए. So that's what I feel. For the people who are in that position, I feel bad for them. If they're happy, that's great. But I do not see any other thing apart from marriage as, I don't know, like a guarantor against bad will कि जब कुछ बहुत बुरा हो तुम्हारे साथ कोई है, someone to spend your life with and share your intimate moments with. And just, I don't know, like I've seen people who lose their spouses when they're older. They live with the sadness, ठीक है? They try their best to, क्योंकि इतना सारी तुम चीजें शेयर करते हो और एक बंदा
तुम्हारी मेमोरीज का जो बॉक्स है उसके पास होता है और वो उसको लेके मर जाता है और कुछ होता ही नहीं है। फिर ऐसे टिपिकल क्या बोलते हैं, क्या वर्ड होता है, खसड़ू बुड्ढे नहीं, खड़ूस बुड्ढे बन जाते हैं फिर लोग। याद नहीं आ रहा था, but हाँ, that's what I feel. What do you feel? Why did you ask me that? Because I really had this dilemma. I think this is we're still quite young to. I'm still quite young to make this decision, I guess. To think about it. But मैंने जितना देखा है, मैंने इनफिडेलिटी के केसेस बहुत ज्यादा देखे हैं आजकल के टाइम में. So because we have more options than ever. Right. Uncle aunt जब बच्चे थे, they fell in love, they got married. Because to be fair, अगर Tinder होता तो शायद नहीं होता. Right. It's like love at first sight was a necessity, क्योंकि और कोई था ही नहीं प्यार करने के लिए. वही मैं सोचूं कि हाँ, और कोई था ही नहीं ना. तो आजकल वही, that's why I am a bit icky about this whole idea of marriage, because अपने generation में the way we are being raised in unrealistic expectations movies की वजह से जो set होती हैं हमारे generation के बच्चों में, I think it's very unhealthy. And वही as I've grown up, I've seen more cases of infidelity more than ever. Like maybe बच्ची थी पहले इतना दिखता नहीं था, but अभी or maybe it's always been that way. It's always been that way. वही तो दुख होता है कि सांता क्लॉज रियल नहीं है. क्या? वही तो दुख होता है जब पता लगता है कि सांता क्लॉज रियल नहीं है. जो दुख होता है ना, कि मेरे को अच्छी तरह याद है, इस चीज से याद आया कि जैसे हम छोटे थे तो मेरी बहन को लगता था सांता क्लॉज है. अब तक मैं स्केप्टिकल फेज से बाहर आ गया था, जहाँ पे घर वालों ने रिवील कर दिया था, एक बड़ी कजन रिवील कर दिया कि सांता क्लॉज नहीं होता. क्योंकि मैं उससे पूछ रहा था ऐसे कैसे हो गया, उसने कैसे लिख दिया ये तो ये वो, तो मेरे को पता था, लेकिन मेरी बहन को नहीं पता था. तो मैं जाके उसकी जिंदगी का वो स्मैश करने वाला था. मेरी मम्मी ने कहा नहीं, अभी कुछ साल और. मेरे को लिटरली ये बात याद है, और मेरे सामने उन्होंने सांता क्लॉज से बकायदा उसे लेटर लिखा कि सांता क्लॉज आ रहे हैं, तेरी बकायदा क्रिसमस वाली जो सॉक्स होती है ना 15-20 रुपए की जो खरीद के लाते हैं, कि इसमें सांता क्लॉज से कुछ डालेगा. वो लटकी हुई खिड़की पे, उसमें मम्मी ने टॉफी डाली. वाह मम्मा, सांता क्लॉज ने दिया. तो स्वीट यार, तुम लोग घर पे ये फेस्टिवल्स पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट. नहीं, इट हैपेंड ओनली फॉर 1 or 2 years, देन इट वो अपने आप रिचुअल मर गया. आई थिंक वो इतना कोई उसमें कुछ वो नहीं था ना, मतलब कुछ ऐसे कुछ जूस नहीं था. टूथ फेरी वाला भी ट्राई करा अंग्रेजी कार्टून देख के कि ऐसे नीचे वो रखता हूँ, कुछ नहीं हुआ. सुबह देखा तो अपने मिल्क टीथ वहीं पड़े हुए थे, कुछ हुआ नहीं, बल्कि और थूक सा लग गया था चादर पे. लेकिन दिवाली होली तो सेलिब्रेट होता होगा ना घर पे. हाँ, दिवाली होली इज लाइक स्टैंडर्ड. ऑल्सो नॉर्थ इंडियन हिंदू, उसमें तो दिवाली इज स्टैंडर्ड. मेरे को ऐसा लगता है कि हम मॉडर्न उसके अंदर भी पूजा पाठ घर वाले ज्यादा करते हैं. हमारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कुर्ता पहन के अच्छे लगने में, दारू पीने में, ताश खेलने में. Because bro, what is Diwali without a little bit of losing money and eating मिठाइस? यहाँ पर तो ये वाइब चलती है. नहीं, हमारे घर पे तो मेरे को फेस्टिवल्स का इतना कभी शौक नहीं था बचपन से, क्योंकि हमारे घर पे सेलिब्रेट ही नहीं करते. लाइक वी आर वेरी, अगर जर्मन फैमिली को, मतलब थोड़ा जर्मन लोग होते हैं ना, ज्यादा एक्साइटेड होते हैं. डिसिप्लिन ऐसे, हाँ, नॉट डिसिप्लिन, बट हाँ, हम कुछ सेलिब्रेट करते नहीं है. तो ग्रोइंग अप, थोड़ा बड़े होने के बाद मैंने रियलाइज किया कि शिट, मैं तो मतलब फेस्टिवल्स को लेके एक्साइटेड ही नहीं होती. मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है. थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है मेरा लाइफ. तो मैं नोटिस किया था कि ग्रोइंग अप वी नेवर सेलिब्रेटेड हॉलीडेज एज अ फैमिली. एंड हाँ, I don't like celebrating anything. I am with you on that. तो मैंने ये बात रिवील नहीं करी थी, लेकिन तूने कर दी. मेरे को लगा कोई और है जो बात समझता है. क्योंकि मेरे मामा ने मेरे को कहा था तेरे को पटाखों से डर लगता है. मैंने कहा हाँ. कहते चल एक काम कर, छत पे बंद कर दिया पटाखों के सामने. तो वो मैं बाद में बोलता हूँ ब्रो, ये तो कुछ PTSD रह गया है. बट लाइक चाइल्ड सपोर्ट. हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे को विश्वा कल्याण रात की बड़ी अच्छी एक कॉमेडी है ना, जिसमें वो बात करता है. 1 मिनट यार, मैंने अपनी माइक की सेटिंग गलत कर रखी है. 1 सेकंड. हाँ ठीक है. हाँ, विश्वा कल्याण रात अपनी कॉमेडी में उसमें बात करता है ना कि फेस्टिवल्स क्या है, बेसिकली एक्सट्रोवर्ट्स का एक बहाना है गैदर होने का, कि मेरे को इंसान चाहिए, केओस करो और केओस करो. कि कितना मजा आएगा अगर एक बंदा मटकी नहीं फोड़ेगा. अगर हम सारे झुंड में खड़े होंगे और एक के ऊपर जाके मटकी फोड़ेंगे, कितना केओस हो जाएगा, राइट? तो जब ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं तो मेरे को लगता है कि अपना फोन ऑफ कर लूं प्लीज, आज के दिन में एकांत में कोई किताब पढूं, ऐसे चैन से बैठ पाऊं. लेकिन दोस्त नहीं यार, आज तो दिवाली, आज तो फाड़नी, आज तो ये करना है, आज तो वो करना है, आज तो
है यार, here we go again. So I don't even like celebrating my own birthday. I was like, उस दिन मैं अपने बर्थडे पे कहीं जाके छुप जाऊं और जान पाऊं कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है. बट नहीं, तेरा बर्थडे है, पार्टी देनी पड़ेगी, पार्टी देनी पड़ेगी, पार्टी देनी पड़ेगी. हाँ, मैं पार्टी मांगती नहीं, देती भी नहीं. अच्छी बात है ब्रो. इट्स लाइक वो देखा है तूने, ऑसवर्ल्ड देखा है? है ना, उसमें वो कौन सा होता है, हेनरी. मेरे को सिर्फ 2 चम्मच चीनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा. That's a vibe you can live within life. को अगर मिमिक अभी मॉडर्न डे कार्टून कोई कर पा रहा है तो आई थिंक इट्स पेपा पिग. लाइक द वाइब. पेपा पिग. द वाइब आई एम सेइंग, जो काम वाइब है वो सुन के मतलब नींद आ जाती है, वैसा पेपा वाइब. पिग क्या है? I don't know what this is. You don't know Peppa Pig? कितने मीम्स बनते हैं. कार्टून है एक जगह. It's like Oswald but pigs. Let me look it up. Peppa Pig. Yeah. तो पिंक पिग्स नहीं देखे हैं? देखे होंगे बहुत मस्त. अच्छा, ये हरामी. हाँ देखा है, मतलब इसको देखा है मैंने. बट ऐसे नहीं. ये हरामी. अरे उसकी शक्ल देख के याद आ गया ना कि ये इसको तो मैंने देखा नहीं है. ऐसे इंट्रोडक्शन होता है. That's a very फरीदाबाद नॉर्थ इंडियन थिंग. ये हरामी. यार मतलब हरामी बोल दिया. मुंबई में लोग कम गाली देते हैं, मैंने ऑब्जर्व करा है जनरली, है ना. हाँ. मेरे को तो पर बम्बईया हिंदी बहुत बढ़िया लगती है. ए मैं नाके पे खड़ा है, किधर रह रहे तू, जैसे मुंह को ऐसे बड़ा करके ऐसे बोलते हैं. इधर सारी बातें ऐसे मुंह को, क्या कर रहा है इधर को, मतलब इट्स वेरी स्ट्रेट बॉक्स. आई डोंट नो, मैं बहुत नोटिस करता था. मैं तो जा के यही बात हंसता रहता था बैठ के कि वाह यार ये हो रहा है. How long did you stay in Mumbai? I was in Mumbai for 8 months roughly. हाँ. 8 months for the job? For the job, 7 months of trying to figure it out, making monies through different hustles. 1 महीने social media management कर ली, 1 महीने ये कर लिया, 1 महीने वो कर लिया, ऐसे. अच्छा, you just wanted to मतलब experience life in Mumbai क्या? Experience that was in the backdrop, but it was a big part of it. But I was making money through different things. किसी ना किसी तरह से hacks करके. Couple of months I just lived in denial. Not easy. हाँ यार, not. Especially if you don't have a concrete plan. The biggest mistake I made, which is now like a lesson, is came without no plan. I was sick कि यार मैं घर वापस आ गया हूँ कॉलेज से, क्योंकि कॉलेज के उसके अंदर life wasn't supposed to happen where I would get a job in the US. Trump ने वो that he increased the time you would need to get a job approval to 6 months. But उस टाइम के लिए मेरे को फिर घर पे बैठ के रेंट देना पड़ता, खाना पड़ता, but I could not legally make money. So I had to came back, lived in denial कि अरे यार सीन तो ऑफ हो गया, मतलब मैं अब इंडिया आ गया हूँ. ओहो हो. एंड माय फ्रेंड्स बी लाइक, भाई अब तो इंडिया में यहाँ ऐसा होता है. मैंने कहा मुझे क्यों बता रहे हैं, पूछ रही कि मेरे ही. सो आई फाउंड द फर्स्ट एस्केप आई कुड फाइंड वाज इन मुंबई. आई वाज एट इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट. वहाँ IPM वाला आया था, लाइक इनके साथ जॉब लेता हूँ. And that's how I came here. Even I did DMM. So वो लोग एक 24 hour का कुछ 24 hour में मूवी निकली है. वो कंपटीशन होता है जो मतलब बाकी सब लोग चिल करने जाते हैं कि वाओ मनोज वाजपेयी आ रहा है ऑन टॉकिंग अबाउट ऑथेंटिक हिंदी सिनेमा, तो वो सुनने चाहूंगा मैं. हाँ. तो बट वो मेनली इसलिए होता था कि कुछ शातिर फिल्म मेकर्स और ऐसे वीडियोग्राफर्स बैठ के 24 घंटे में पिक्चर बनाते हैं, 48 घंटे में पिक्चर बनाते हैं, डिफरेंट वो होते हैं. दैट्स सुपर कूल बाय द वे. Yeah. I mean, I was asked to be a part of it, but nahi. Why not? It's a great platform. Yeah, it is. पता नहीं मैंने तब मना क्यों किया? Maybe आलस. I don't know. But yeah, did you do engineering from Boston University? नहीं यार, please. I would kill myself. I did communications. I'm guessing. चश्मा, दाढ़ी. अरे यार, तूने मेरे को ऐसे IIT निगाह से कंपेयर कर दिया. कोई बात नहीं. नहीं. I did communication studies और मेरा फिर फोकस था एडवर्टाइजिंग के अंदर. That's what I could sell to my parents कि ये अच्छा है, because English literature would have been too much. तो ऐसा वाला सीन था. But tell me यार, क्योंकि इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट के ऊपर मैं जब गया था, they had a whole section on memes. एक पूरा पैनल लगा था मीम्स के इतिहास को समझाने के लिए, और ऐसे कोई न्यू एज मीमर्स आते हैं. गैस दैट्स द फर्स्ट आई सॉ लाइक एक इंटरनेट मीडिया कल्चर उसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि अदरवाइज सारे के सारे ये होते थे कि ये एक्टर बताएगा इस चीज के बारे में, ये एक्टर बताएगा इस चीज के बारे में, स्टफ लाइक दैट. इट बी कूल टू सी यू ऑन अ पैनल. एक मीम था ओवरली अटैच्ड गर्लफ्रेंड करके, एंड वो मीम बिका है मिलियंस में एज एन NFT. या दैट्स क्रेजी. सो आई थिंक 4 million or 3 million ऐसे millions में बिका है वो मीम. It's an old meme, like 10 years ago. I remember watching YouTube video Overly Attached Girlfriend, तो उस पे बहुत memes बनते थे, तो बिका है अभी. So just imagine
एक मीम बेच के तुम्हारी पूरी लाइफ सेट। यार एक बात बता, हाँ ये व्हाट डू यू फील अबाउट इट? तू भी तो क्रिएटर है, कि ये एनएफटीज का पूरा जो सीन आ रहा है, डू यू फील लाइक यू नो टेक पार्ट इन इट? मी I'd love to, that'll be iconic. मेरे बच्चों को बोल सकती हूँ कि मैंने एक मीम बेचा और अभी तुम्हारे प्लेट में खाना है उस मीम की वजह से। यू नो वो पावरी हो रही है वैसे मीम्स। एक मेरा भी एक मीम था, मुझे शर्म आ रही है करके, एक me saying that in an accent with an accent. So थोड़ा पावरी जैसा था, बट वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना पावरी हो गया। So I don't understand how a meme becomes a meme, you know, a viral meme. Like how people start picking it up. That's something very interesting to me. अगर तेरे को पॉडकास्ट पे एक पॉडकास्ट गेस्ट चाहिए, I would insist you get Abhinav Chikara. I don't know if you know who that is. He's the पहले Unacademy है ना जो, उनका वो head designer था. Now he has his own design cohort. He teaches design, but he has this other alter ego called Abnux too. मैं उसके साथ काफी कोलैबोरेट करता हूँ। वहाँ वो aliens की बात करता है, NFTs की बात करता है, क्रिप्टो की बात करता है। Super smart guy. And he often, उसने क्या करा, he's done these many experiments to see कि वो how you can use words and images and a mix of that to make memes viral. बड़ी अच्छी तरीके से करता है। He's used this thing called bruh. तो हिंदी में जैसे लिखते हैं ना ब, अगर देवनागरी स्कूल में पढ़ाई, मराठी पढ़ाई थी, हिंदी पढ़ाई थी कभी? हाँ ऑफ कोर्स है ना, मेरे को पता नहीं है ना कि मुंबई के स्कूल्स में हिंदी पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, that's why I'm asking. तो ब लिखा हुआ है और उसके नीचे ऐसे र की मात्रा लिखी हुई है और बाद में दो कॉलन्स हैं, तो it's literally saying bruh but in Hindi, ठीक है? I think that's Sanskrit ना? हाँ that's Sanskrit actually, because जो दो वो लग जाती है ना डॉट्स उसके बाद, तो वो करके I've been seeing everyone who follows him, चाहे उन्हें कुछ नहीं पता, bruh 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 bruh, it's that Vinod level status that he's achieved using that. So that I find very interesting कि तुम you have to manufacture something simple enough and relatable enough, ये लोगों को समझ भी ना आए फिर भी बोलते हैं यार ये तो शेयर करेंगे, ये तो चल रहा है. It's something like that. Even Vinod, I think वो काफी उन लोगों ने भी सोचा नहीं था कि उस लेवल पे जाएगा वो, right? Slay point, but वो गया. So you can never tell, I guess. I mean, हाँ, you can strategically play a game correctly, but at the same time, you never know क्या चलने वाला और क्या नहीं, is what I feel. Yeah, it's very weird. लेकिन अगर तुम 10 मीम निकालोगे वैसे तो उनमें से एक जाएगा वायरल, I guess. Do you make memes in your free time? I used to have a meme page कॉलेज में, लेकिन वो सिर्फ क्लास के लोगों तक सीमित था. मैंने कभी ऐसे प्रॉपर पब्लिक मीम पेज विद पॉप कल्चर वगैरह पे नहीं बनाया, बट आई वाज क्लास के लोग का मजाक उड़ाते थे मैं उस मीम पेज पे. पर आई थिंक द ब्यूटी ऑफ मीम्स इज कि जब तक वो प्राइवेट कम्युनिटी होती है ना उन मीम्स की, उसमें जो रस निकल के आता है ना, जो सच्चाई निकल के आती है, जो दर्द निकल के आता है दूसरे को जो देना होता है, वो इतना अच्छा होता है. बिकॉज़ once it becomes public you can't like the फिर you have to dial it down, है ना? बट जब तुम्हें पता है कि इसकी ऑडियंस 20 लोगों की है, तो एक एक बंदे पे ऐसे वार किया जा सकता है और फिर और लोगों के रिएक्शंस उस मीम के अंदर एम्बेड किए जा सकते हैं. हमारा तो 8 दोस्तों का एक मीम पेज है स्पेसिफिकली, जो हमारा दोस्तों का एक ही मीम सरताज चलाता है, और उसमें इतने खतरनाक मीम्स होते हैं, ऐसा लगता है कि दिनों के लिए मैंने मीम्स देख लिए. मतलब मेरे को इंटरनेट के किसी मीम को देख के इतने मजे नहीं आते. Is that meme group still there? हाँ, it's private, ठीक है, हमने सबको हटा दिया. बट द पॉइंट इज उसमें इतने ऐसे होता है ना कि जैसे तुम किसी को जानते हो, तुम्हारे दोस्त को, और उसकी तुम्हें अंदर की हरामजादगी पता होती है कि इस तरह का इंसान है, और तुम उस चीज को आर्टिकुलेट करके मीम में बरसा दो और तुम्हारे दोस्त लाइक करते हैं, वाह कितना बड़ा चूतिया है ये. तो उसमें जो आनंद आता है ना, मतलब वो आनंद इतना अच्छा है कि मैं उसके लिए शायद अपना हाथ भी काट लूंगा. I mean, अभी मीम्स भी इवॉल्व हो रहे हैं. रील्स में अभी वीडियो फॉर्मेट में मीम्स आते हैं. सो यूट्यूब पे वो छोटे 3 सेकंड के क्लिप, 4 सेकंड के क्लिप, वो भी काफी पॉपुलर हो जाता है, मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं उस पे भी. सो वो भी मैं इवोल्यूशन नोटिस कर रही हूँ कि अभी इमेज फॉर्म से हम वीडियो फॉर्म पे आ रहे हैं. Yeah, there is. Do you consider yourself, Riya? Do you consider yourself a part of the Instagram comedian wing or no? No, I don't call myself a comedian at all. नहीं. I think calling yourself a comedian is a huge क्या बोलते हैं, प्रेशर मतलब आ जाता है. तो मैं लेती नहीं हूँ प्रेशर. अगर कोई बोलता है हाउ सो अनफनी, तो मैं बोलती हूँ मैंने कब जोक मारा, मैं तो बस ऐसी सेंटेंस बोल रही थी. हाँ, ये मैं मतलब पता नहीं, I'm also inclined to use it sometimes, but I find very funny कि
the number one thing this community does is saying कि something is unfunny, and people are hurt by it. I mean, I feel funny होना क्या सबसे how is being funny superior? Okay, maybe हाँ, you need to. It is an attractive quality, but it is not superior by any means, because you can. Yeah, but people like, treat it like that, right, on the internet. So. Yeah. Have you watched आपका Jugs videos? He is my friend, of course. Yeah. अच्छा, तेरा दोस्त है. हाँ, मैंने उसका भी दोस्त कास्ट करा था ना, तो उसका इतनी मजे आते हैं. He such a wholesome vibe कि भैया कोई गंदी फिल्म है, अच्छी बातें करनी है. हाँ. But I saw his viral Bhayani parody, which was hilarious. तूने देखा है viral Bhayani? हाँ, उसके सारे वीडियोस देखे हैं. हाँ, क्योंकि मैंने मुंबई के अंदर वायरल बयानी का चैनल जो देखा था, मतलब मेरे फीड पे आता रहता, तो मेरे को बड़े मजे आते हैं. जैकी सर एक फोटो, और उसने इतना बढ़िया करा. लाइक फॉर मी दैट वाज लाइक ट्रूली फनी, नॉट बिकॉज़ ही इज सेइंग एनी जोक्स, बट द enactment of that is funny. You know? Yeah, he is a very creative dude, and like you know, उसके numbers इतने fast नहीं grow कर रहे हैं जितने बाकी channels कर रहे हैं who are following the trends. He's not following the trends in a way. He's doing something amazing that he wants to do. Right. Unique. I feel like उसका time आएगा. You know, like अभी fitting Mumbai reference. अभी he's like diamond in the rough. और वो मतलब 1-2 साल में he will blow up is my prediction. Like I am personally not proud of the content that I am making right now. I want to be proud. That's why I'm switching it up a little bit. Thoda. Because I was not trying these things for the longest time because I thought Indian crowd. हाँ. But भाई अभी Jags से भी बात की मैंने, तो उससे भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिल रही है मेरे को, कि उसने बोला कि you should not care about the growth aspect as much. What you love. So yeah. Fantastic. ये हो गई. एक बात और पूछता हूँ, फिर उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं. Okay. आजकल कौन से गाने सुन रही है? What are you vibing to nowadays? आजकल तो मैं मैंने रील्स में सुना था ये गाना, तब से यही मैं बर्तन धोते समय सुनती हूँ. रास्पुटिन करके एक गाना है. रास्पुटिन 80s का गाना है, बोनी एम का, बहुत पुराना. हाँ, मुझे ही इज डैडी कूल वाला भी उसने तो बॉलीवुड में सुना था. like a fool. What about daddy cool? मेरे पास सीडी थी इनकी गाने की, बहुत बढ़िया. मुझे लगा था ये बॉलीवुड गाना है, बाद में पता चला अरे ये तो चुराया हुआ है. ये ना बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, जैसे शकीरा का हे सेक्सी डीडी का भी 3-4 वर्सेस उठा के कि हमने इंग्लिश भी डाल दिया, ऐसे कर देते हैं लोग, बेईमानी करते हैं. अरे रास्पुटिन का भी पता है, एक he is a preacher bible ऐसा एक ट्यून आता है. वो भी मैंने सैफ अली खान की एक मूवी में सुना है. ठीक है, हिंदी में फील द म्यूजिक ऑटो पे सजाने, ऐसा ही गाना है. तो बता आई थिंक वो रेस में था या कौन सी मूवी में था, या फिर एजेंट विनोद में था. एंड देन ये तो प्रीतम ने ही बनाया होगा पक्का, और देखा तो प्रीतम ने ही बनाया था. प्रीतम नंबर 1 कॉपी. मैं तेरे को बताता हूँ प्रीतम की 2 घटनाएं. एक तो मेरे को पक्का पता है, गॉडफादर पिक्चर देखी है? नहीं. गॉडफादर एक पिक्चर है ना जिसके अंदर ट्यून होती है जो दर्शक है वो पहचान जाएंगे. अब ये सुन, राजा को रानी से प्यार, सेम ट्यून. एक दूसरा, प्रीतम के कुछ गाने हैं जो कोल्डप्ले की जो फर्स्ट एल्बम है ना, पैराशूट्स, उससे सारे के सारे कॉर्ड प्रोग्रेशन बोरो कर रखे हैं उसने. तो ये तो बहुत, ये वाला सिस्टम बहुत चलता है, ऐसे चिन्नी बना. इवन वो वाला गाना भी ओ जाने जा मैं हूं जहां, ये कहाँ से कॉपी हुआ है? पहली नजर में. हाँ, ये कोरियन मूवी से उठाया पूरा, इवन लिरिक्स भी पूरा, ट्यून लिरिक्स सब. एटलीस्ट मतलब बाकी में उसने कॉर्ड्स दिए हैं, बस इसमें पूरा गाने उठा लिया विदाउट बाइंग द राइट्स. देयर इज दिस बैंड कॉल्ड यूरोप, उनका एक गाना है फाइनल काउंटडाउन. ठीक है, वो 70s की किसी मशहूर पिक्चर में 70s में चुरा लिया था, जिस डेकेड में रिलीज हुआ था उसी डेकेड में चुरा लिया था. तूने सुना भी होगा, टननना टननना टननना. हाँ, टननना, ये वाला भी, ये बहुत, ऐसा तो ट्यून चोरी बहुत है. और कौन से गाने सुन रही है? रास्पुटिन सुन लिया. अभी रुको, Spotify recently. Spotify पे जाने दो 2 मिनट. I love how Spotify has changed so many lives. इससे पहले दोस्तों से curated recommendations,
हाँ. लोग तो YouTube म्यूजिक सुनते हैं. I can't stand that. I like Spotify. I've been listening to AC/DC. Oh yeah, you're an AC/DC fan? Yeah, अभी recently मैंने start किया है. What song were you listening to them by them? वही classics, Back in Black. Back in थोड़ा, Black. हाँ. Exact. Yeah. Yeah. बहुत I सुना really मैंने like- AC/DC. If you want to feel like a badass, you know, हाँ. ऐसे पीछे गाड़ियां उड़ रही है. अगर तेरे को क्लासिक रॉक की ऐसी वाइब पसंद है, I'll send you a whole playlist of songs like this जो ऐसे bangers हैं कि हम ही हैं बस. चलो WhatsApp पे send कर देना. ठीक है, sounds good. And Hotel California recently सुनना start किया मैंने. क्लासिक रॉक इज अ वाइब. इफ यू गेट इनटू इट ऐसा फील होगा. लिटरली एक पूरा गाना है स्कूल्स आउट फॉर समर जिसके अंदर एक बंदा ये गा रहा है कि सब स्कूल वाले कुत्ते हैं, मैं ही राजा हूं. देयर आर सो मेनी ग्रेट सॉन्ग्स. दिस वन सॉन्ग कॉल्ड स्वीट इमोशन बाय एरोस्मिथ एक बैंड है इन्हीं के टाइप का, एसीडीसी टाइप का. और उसके अंदर ऐसा लगता है तुम गाड़ी के अंदर जाके ZNMD करो ऐसे करके और तुम आजाद हो, तुम जवान हो, ठीक है, और आसपास खाली सड़कें हो. Nice. Yeah, did that a lot. गाड़ी में बैठने के लिए प्लेस अच्छा चाहिए रहता है. But it's sad to say that currently I don't have a favorite Bollywood song. Like Bollywood अगर है अभी म्यूजिक के मामले में. Correct. बस रीमेक्स बनाए जा रहे हैं घटिया, अच्छे गाने बिगाड़ रहे हैं. मतलब मेरे भाई के टाइम पे बहुत like you know when भाई का टाइम कब हुआ? I would say 2011, 12, 13, 9. अब टाइम बीत गया उसका? हाँ? अब टाइम बीत गया उसका? नहीं, I'm saying जब you know like 21, 20 years के जब थे like हाँ. हम 13, 12 मतलब उनके जनरेशन में अच्छे गाने बनते थे बॉलीवुड में. Like अजय प्रेम की गजब कहानी is a nice album, Rockstar is a nice album. इमरान हाशमी के बहुत सारे गाने अच्छे थे. अभी क्या हो रहा है मतलब? इंडी सीन उठ रहा है. तूने लिफाफा सुना है? नहीं. ओए यार तेरे को चल ठीक है, मैं तेरे को एक तो रॉक एंड रोल ठीक है. नहीं रैप नहीं है. सो व्हाट ही डज इज ही इज बीन ऑन माय अदर पॉडकास्ट एज वेल. He said he wanted to make music that's new age but also that his mother could listen to it. तो 70s के जमाने के ऐसे मधोश लिरिक्स शायरी टाइप के but proper new age drums and bass के साथ it's divine. His music is fantastic. हाँ तो ये I think indie artist. Is he an indie artist? Yeah, indie artist for sure. यही होने वाला है. It's going to switch from Bollywood to indie artists. I hope मतलब ऐसा हो क्योंकि you know वेस्ट में आई थिंक ये सीन है ना कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैव मतलब वो वही बॉलीवुड में गाते हैं, मतलब बॉलीवुड नहीं सॉरी मूवीज में गाते हैं. लाइक यूसुफ वगैरह वो मूवीज को अपना गाना देते हैं. यहाँ पे मूवीज वाले लोग हायर करते हैं सिंगर्स. या सॉन्ग्स आर कमीशन्ड मोस्टली. तो या और ये टी सीरीज का केसेस में पता ही होगा ना कि हाउ दे एक्सप्लॉइट देयर सिंगर्स एंड राइट. सो वो आई थिंक सीन हट जाना चाहिए मेरे हिसाब से. ये सब जब independent होने लग जाएंगे singles I feel. It's going to take a while. There are a couple of others और वो they are only concentrated जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर ऐसी जगहों पे पता है कि अच्छा ये इंडी सीन है. तुम होम ग्रोन के इवेंट्स पे जा सकते हो और ऐसे इवेंट्स के अंदर जहाँ ढूंढ सकते हो. बट वैसे the recognition is like piss poor, को जानता ही नहीं. अभी भी सब इंडिया में गाने बनाने का मतलब है कि तुम प्लेबैक सिंगर हो जो इंडियन आइडल से होके आए हो, वो राउट फॉलो करके आए हो, है ना. I feel like and rural audience overpowers the urban audience any day. For sure, any regional hit is better than like एक ऐसा कुछ random. Yeah, so if you want to make money, you want to target the rural audience. ये internet के इसमें भी same scene है. Like जो TikTokers है जो rural audience को serve करते हैं, I feel like उनके पास ज़्यादा audience है, ज़्यादा बड़ी audience है. They pull huge numbers more than people who make content for the urban audience. So ये हाँ. It's a small minority of slightly unhappy people are like अच्छा मेरे लिए content आया नहीं देखना. Yeah, I don't think we should undermine that either. नहीं, I'm making a joke, of course. I know. Please, this podcast is going to be broadcasted to an audience I care about, for sure. हाँ. Yeah, वही इसलिए मेरे को I don't like it when you know people make fun of those TikTokers who are just. I agree. Yeah. Like एक रोस्ट कल्चर का मुझे एक सीन पसंद नहीं है कि you know they make fun of people. I mean it's okay to make fun of someone who can make a good video but is still choosing not to make a good video. And there are some people who just make downright bad videos because they don't know how to make a good video and you can tell. And फिर उन TikTokers को पकड़ के वो लोग रोस्ट करते हैं. I don't like that. Yeah, you're saying कि someone does not have access to certain resources that you have or whatever degree of knowledge you've acquired, so it's okay to shit on them. Now I will तो उसके अंदर थोड़ा सा मेरा caveat ये है कि some things are genuinely funny. Some things are so funny कि
you can forget कि what is punching up or punching down, but some things are done in bad taste. ठीक है, I think that's what you're talking about, कि ये मतलब खामा खाई बैठ के, कि उस आदमी का जो दायरा है सोचने का कि यार मेरे को यही पता है कि एक लड़का आएगा लड़की आएगी दोनों प्यार करेंगे, ये मेरी वीडियो हो गई, उसका मजाक बनाना is just you can make fun of it, but it is a world that exists, people like that. Yeah, you're not, and you know, like making fun of construction workers who are just having a good time on TikTok, which is an escape for them, and you know, and just people down and making fun of them, which doesn't make sense to me. Something you should not do and not promote. Yeah. मेरे पापा ने एक बार बात बोली थी वाली, आई ऑलवेज रिमेंबर, मैंने कहा यार आप मेरी तरह इंडी आर्ट हाउस पिक्चरें क्यों नहीं देखते, आपको ये कमर्शियल बिग बैंगर्स क्यों पसंद है? तो उन्होंने मेरे को बोला कि हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर लोग पिक्चरें देखने भूलने के लिए जाते हैं, ठीक है, एंड दैट्स अ ह्यूज थिंग. You go to forget what your life is like and live in this world where the heroes are larger than life and you enjoy it. You know, you enjoy these larger than life situations and it is a pleasure and million others share it with you. So what's the problem? Yeah. So what is cringe is very subjective. Yeah, but at the same time, maybe not. Don't promote wrong ideas like Bollywood mein very objectification. For sure. All of that. Yeah, I think if we keep that aside, बाकी मसाला जितना डालो, I think वो perfect spot hit हो जाएगा. Fantastic. Yeah. And इसी conversation के अंदर भी हमने perfect spot hit कर दिया. Thank you रिया गोगोई for being in Ghostcast. मेरे को बहुत मजा आया actually chill करके, ऐसा लग रहा था हम chill कर रहे हैं. और तेरे को क्या पसंद है? मुझे ये पसंद है. ठीक है, that was a fun vibe. Yeah.